All right. So let us start with the company assessment. The chapter is important from the examination perspective. Like either there will be a question on business and profession, or there will be question on firm assessment, firm or LLP assessment, or obviously there is a question on the company assessment. So in exams, you can expect a practical question on this. So the practical question with reference to company assessment, if it is about 12 to 15 marks, then they will ask you to calculate both for MAT calculation as well as regular income tax calculation. But if the question is small, or let us say 5 to 8 marks, then they usually don't ask both. Either they will ask you only MT calculation, or they will ask you to do calculation as per income tax. So if the question is plainly on the calculation of income tax, then there is no much of difference, because for company assessment, except MAT and except few other points like dividend from the foreign company and buyback of the shares, apart from that, the most of the calculation points remains same. Where the main difference comes into picture is with reference to MAT provisions. So as far as MAT is concerned, for MAT, we have to check upon the list of additions and list of subtractions. And after that fixed list of addition and subtraction, then we'll get the profit as per the MAT provisions, and which is considered as book profit. तो उसके ऊपर हम लोग tax compute करेंगे, and then that tax is compared with tax as per the income tax rules, and whichever is higher is required to be paid. तो जो टैक्स पेमेंट का रूल्स है दैट रिमेन सेम फॉर एएमटी और मैट, मतलब जो भी हायर रहेगा उतना आपको पे करना पड़ेगा. एंड जैसे हमने देखा था एएमटी में यू कैन क्रिएट क्रेडिट फॉर द अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, वैसे यहाँ पे भी हम लोग मैट के हिसाब से क्रेडिट क्लेम कर पाएंगे. So accordingly, we'll have to consider the MAT credit. So that is one type of question, and another type of question is जहाँ पे सिर्फ plainly business sum रहेगा, and आपको computation of income जैसे हम लोग regularly करते हैं वैसे करना पड़ेगा. All right. So we'll start with a practical question wherein no MAT or no other calculation is required, just a plain question. And then we'll learn what are the MAT provisions, and then obviously we will solve questions on the MAT provisions. All right. So let us start with first question on company assessment. जिसे रेगुलर हम लोग अलाउड डिसअलाउड की तरह कंप्यूटेशन करते हैं वैसे ही हमें करना है. क्वेश्चन नंबर 1 चेक कर लो. Decide which expenses would be allowed and which will be disallowed, and then we'll start looking at the answer for it. Take 5 minutes and decide in each of the case whether expense is allowed or not allowed.
डन। चलो बताओ, फर्स्ट ऑफ ऑल डेप्रिसिएशन क्या करेंगे? Do I need to adjust depreciation of 1 lakh? Can you hear me? Yes. Yeah. Do I need to adjust depreciation of 1 lakh? क्या लिखा है उधर? It earned a profit of 2,50,000 after providing depreciation of 1 lakh, which is admissible under Income Tax Act. अभी obviously Income Tax Act के अंदर admissible है, तो you are not required to adjust that amount. तो उसको कुछ भी नहीं करेंगे हम. First adjustment, company paid remuneration to whole-time directors. Articles do not provide for such payment. अभी ये सब पढ़ के it becomes confusing कि अरे articles ने allowed नहीं किया तो whether it is allowed as deduction or not. Income tax में क्या rule है बताओ? If any payment is made to directors or employees, is there any disallowance as such? Have we studied any disallowance for payment made to directors? No. No. So obviously it will be allowed as deduction. सिर्फ remuneration to partners में rule क्या था कि partnership deed should provide for the provision for remuneration. Like कितना remuneration pay कर रहा है उसका उधर information होना चाहिए. लेकिन इधर ऐसा कुछ भी इधर ऐसा कुछ भी प्रोविजन नहीं है which states कि आपको आर्टिकल्स में प्रोवाइड करना पड़ेगा और एनीथिंग लाइक दैट. तो इसके लिए आपको ये डिसअलाउंस नहीं होगा, इसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा. ओके. देन मिसलेनियस एक्सपेंडिचर
of rupees 15,000 paid towards penalty for non-fulfillment of delivery conditions of a contract. हाँ? अभी penalty कौन सा disallowance होता है? Which is for infringement of the law or infringement of the act. ये क्या हुआ, दोनों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट था, बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट था, एंड वो फुलफिल नहीं किया, इसके लिए एक पार्टी ने दूसरे को पेनल्टी चार्ज किया. सो ऑब्वियसली दैट पेनल्टी इज अ expenditure connected to business and therefore it should be allowed as deduction. Are you getting this? Yes, sir. Point number 3, company received fees of 75,000 from an Indian company for supply of know-how in the installation of machine. इसका क्या होगा? ये कंपनी के लिए क्या है, बिजनेस इनकम है. अभी नो हाउ लिखा तो हमें लगता है डेप्रीसिएशन, बट डेप्रीसिएशन सामने वाली पार्टी को रहेगा, द पार्टी विच इज मेकिंग पेमेंट. बट वी आर AB Limited is receiving the payment, and if they are receiving the payment, will that be allowed as income or will that be considered as income over a period of next 5 years? ऐसा कुछ प्रोविजन है नहीं. रॉयल्टी इनकम जब भी मिलेगा तभी आपको टैक्स भरना पड़ेगा. So in given case, when you are receiving the royalty, same would be liable for taxes. Are you getting this? Yes, Yes. sir. Okay. So अभी तक कुछ भी adjustment नहीं आएगा. Traveling expenses include 15,000 in respect of visit of technical director to West Germany to study the export market of chemicals. Is it business expense or not a business expense? Business expense. Yes, so it should be allowed. Second one, 15,000 of MD to America for purchase of machinery for the proposed unit. इसका क्या होगा? सब होगा. क्या हुआ? ये भी बिजनेस एक्सपेंस है ना? Correct. This Yeah. is business expense, but yeah, Preeti. सर ये तो अदर सोर्सेस पे जाएगा ना, डिविडेंड. Dividend नहीं, फोर्थ का B point 15,000 का. We are talking about सॉरी. fourth B. हाँ सॉरी सॉरी. Poonam, it is right that it is business expense, but only thing is with what we have to consider is it is with reference to purchase of machinery for the proposed new unit. मतलब अगर आपको याद है अकाउंट्स में एक फंडामेंटल रूल था, any expenditure incurred on the asset till the time it is put to use should be capitalized. Remember this rule? Yes. Huh? And therefore, this expenditure is treated as a capital expenditure, not because of income tax provision, but because of the accounting provision that expenditure in connection with asset should be capitalized, and therefore, traveling expenses of MD for machinery कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसके लिए डिसअलाउड हुआ ना सर? yes. And इसका और एक एडजस्टमेंट क्या होगा? सेकेंड इम्पैक्ट क्या आएगा इसका? डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी. समझ में आ रहा है? देखो, एक्सपेंडिचर अगर कैपिटलाइज कर दिया तो वी आर सेइंग इट इज नॉट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, करेक्ट. एंड अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो डेप्रीसिएशन मिलना चाहिए. तो 15,000 पे हम लोग क्या कर सकते हैं? वी कैन क्लेम डेप्रीसिएशन. आर यू गेटिंग इट? Are you understanding? Yes, sir.
गुड, ओके, जाए नेक्स्ट पॉइंट पे. Yes, sir. Other income credited to profit and loss account includes dividend received from Indian company. हाँ, इसका क्या करेंगे? लेस कर देंगे. और other sources. हाँ, and उसको अदर सोर्सेस में ट्रीट करना पड़ेगा. परफेक्ट. कितना है डिविडेंड फ्रॉम अनदर इंडियन कंपनी? 30,000. ऑलराइट. नेक्स्ट डोनेशंस. डोनेशन तो सीधा हम लोग क्या, हाँ, डोनेशन 50,000 फॉर अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन. ये तो आपको 35 सेक्शन में बेनिफिट मिलता है. हाँ, तो उसका कुछ भी डिसअलाउंस नहीं होगा, लेकिन 40,000 का होगा. हाँ, 40,000 would be disallowed. एंड इसका क्या करेंगे बाद में? डिडक्शन चैप्टर 6 है. यस, ग्रॉस टोटल इनकम कंसिडर करने के बाद लेस लेकिन उसके लिए आपको कंडीशन चेक करना पड़ेगा, तो वो कंप्यूटेशन हम लोग बाद में करते हैं. याद है ना, 50% ऑफ डोनेशन और एडजस्टेड 10%, सॉरी, डोनेशन और 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई व्हिचएवर इज लेस, उसका 50%. करेक्ट. इंटरेस्ट इंक्लूड्स 5,000 पेड ऑन इंस्टॉलमेंट ग्रांटेड फॉर सेल्स टैक्स पेमेंट. अभी सेल्स टैक्स पेमेंट के लिए ऐसा कुछ हुआ रहेगा तो उसके लिए कुछ भी डिसअलाउंस नहीं है. लेकिन अगर आपने इनकम टैक्स पे करने के लिए लोन लिया या एडवांस टैक्स पे करने के लिए लोन लिया तो उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन हम लोग क्लेम नहीं कर पाएंगे. बट सिंस दिस इज सेल्स टैक्स, वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू एनी एडजस्टमेंट हियर. एंड जो सेकंड है फिर 5,000 पेड टू नॉन रेसिडेंट विदाउट टीडीएस, ये ऑब्वियसली क्या होगा, डिसअलाउ होगा. कितने एक्सटेंड तक डिसअलाउ होगा? फुल्ली. यस, क्योंकि इट इज पेड टू नॉन रेसिडेंट विदाउट टीडीएस, so it is 100% disallowed. Then salary paid includes bonus of 90,000. However, bonus payable on 31st March is paid on 15/10. इसका क्या होगा? नहीं आएगा ना सर? आएगा. Accrued expenses. याद आ रहा है? सेक्शन 3B में पॉइंट था, बोनस, लीव एनकैशमेंट should be paid on or before the due date of filing returns. हाँ, एंड अगर वो पे करेंगे तो डिडक्शन मिलेगा कंपनी को. एंड सिमिलरली हमने सेम प्रोविजन सैलरी में भी देखा था, याद है?
सिर्फ सैलरी रहता तो हम लोग अलाउ करते, लेकिन क्या लिखा है, सैलरी इंक्लूड्स बोनस ऑफ 90,000 विच इज नॉट पेड। तो बोनस के लिए क्या होगा, सेक्शन 43B एप्लीकेबल होगा। एंड व्हाट 43B सेज, इफ यू पे द एक्सपेंडिचर इट इज अलाउड, but if you don't pay the expenditure it is not allowed as deduction. Whenever it is paid it would be allowed. Now since it is paid after the due date of filing return, it would be allowed as deduction in the next year and not in the current financial year. All right. Are you getting it? हाँ सर। Yes. Yes, sir. Then long-term capital gain on sale of shares to recognized stock exchange expenses on earning such income is 5,000. तो वो expenses disallow कर देंगे पहले। इनकम लेस कर देंगे। ऑलराइट, एंड उसको अदर हेड्स में ले ले, मतलब यहाँ पे 140 पूरा कंसिडर करना पड़ेगा आपको, बिकॉज जितना इनकम है उतना हम लोग कंसिडर करेंगे। सो जीटीआई है टोटल आपका 4,12,750। अभी डिडक्शन अंडर एटीजी कैसे आएगा, डोनेशन नहीं, पहले एडजस्टेड जीटीआई निकाल लेते हैं। एडजस्टेड जीटीआई कैसे आएगा, 412,750 लेस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 1,40,000, तो कितना आया, 2,72,750। करेक्ट। इसका 10% कितना आएगा, डोनेशन कितना है 40,000, whichever is less। लेस। एंड डिडक्शन कितना मिलेगा, कितना आएगा, 13,638। चेक करो एक बार, करेक्ट है। Yes, sir.
Net income, total income is 399, 112. All right. Yes, sir. अब ये क्वेश्चन तो नॉर्मल बिजनेस की जैसा ही हुआ. Have we done anything new here? No. No. तो ये तो रेगुलर बिजनेस की तरह है. मैट पूछेंगे तो यस, आपका कैलकुलेशन क्या होगा, बदल जाएगा. तो मैट क्या है या मिनिमम अल्टरनेट टैक्स कैसे निकालेंगे वो हम लोग देखते हैं, बट पहले आप इसका आंसर नोट डाउन करें. Now, book profit, we have to add certain elements. First one is amount of income tax paid or payable or the provisions with reference to that. Then any tax on distributed profits, matlab dividend distribution tax, interest or surcharge cess on income tax. हाँ? तो इसमें से कोई भी रहेगा, मतलब in short income tax paid, income tax provided, DDT paid, DDT provided, everything is required to be added back. Then any amount carried to reserves by whatever name called other than section 33 AC. Abhi shipping business mein there is a reserve called shipping reserve which is required to be calculated, which is required to be created as per tonnage tax provisions. तो वो रिजर्व छोड़ के बाकी कोई भी रिजर्व आपने किया तो वो सब रिजर्व क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा. अभी बट ऑब्वियस रीजन इज आप प्रॉफिट एंड लॉस में से जो भी प्रॉफिट रहेगा वो जनरल रिजर्व में प्रोविजन ट्रांसफर कर दोगे, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. So what we need to do is, or what we need to consider is, we need to consider those reserves. मतलब मैंने अगर P&L से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया तो जितना ट्रांसफर किया है उतना आपके इनकम में क्या होगा, एड बैक हो जाएगा. लाइकवाइज अगर रिजर्व से मैंने P&L में ट्रांसफर किया, लाइक P&L टू जनरल रिजर्व और जनरल रिजर्व टू P&L. P&L के डेबिट में मैंने जनरल रिजर्व लिखा तो एड बैक हो जाएगा, एंड जनरल रिजर्व से P&L में मैंने ट्रांसफर किया तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज नॉट अ न्यू प्रोविजन और नॉट अ न्यू टैक्स एज सच. तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, P&L में क्रेडिट करके रिकॉर्ड करना पड़ेगा. ये पॉइंट क्लियर हुआ. तो रिजर्व क्रिएट किया तो एड बैक हो जाएगा. रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर कर दी, रिजर्व से अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया तो उसको लेस करना है. देन अमाउंट सेट असाइड फॉर क्रिएटिंग अनअसर्टेन लायबिलिटीज. अभी अनअसर्टेन लायबिलिटी मतलब मैंने ऐसे ही कुछ फेक प्रोविजन क्रिएट कर दिया, ऐसे बुक्स में लिख दिया, तो ऑब्वियसली इनकम टैक्स इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी बेनिफिट फॉर दैट. तो फेक प्रोविजंस और एडजस्टमेंट्स वुड बी liable not to be considered, and वो सब क्या होगा, एड बैक हो जाएगा. मेन रीजन इज आप फेक प्रोविजन कर रहे हो to reduce the to reduce the profits. So department knows that, and department says that nothing doing, we will consider that as an adjustment. Then provision for losses of subsidiary company. अभी बताओ मुझे, सब्सिडरी जो कंपनी है उसका लॉस मेरे बुक्स में एडजस्ट हो सकता है क्या? नहीं. नहीं. क्यों? बिकॉज सब्सिडरी कंपनी खुद एक अलग कंपनी है, उसका एग्जिस्टेंस है, तो उसका जो भी लॉस रहेगा वो उसको खुद को क्लेम करना पड़ेगा. तो ऑब्वियसली आई कैन नॉट टेक द बेनिफिट फॉर इट, एंड देयरफॉर वो हमें क्या करना है, एड बैक करना है. देन डिविडेंड प्रपोज्ड और पेड, ये हमें ऐड करना. नाउ रिमेंबर, दिस इज द लिस्ट व्हिच यू हैव टू रिमेंबर. इतने ही एलिमेंट्स को हमें ऐड करना है, इतने एलिमेंट को हमें सबट्रैक्ट करना है, बाकी एलिमेंट्स का एडजस्टमेंट नहीं आएगा. चिंता मत करो, मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्मेट दिखाता हूँ जिसमें मेजर एडिशन एंड मेजर सबट्रैक्शन आपको पता चल जाएगा. एंड मोस्ट ऑफ द केसेस दोस प्लस एंड माइनस जो है
remains more or less constant. Then amount of expenditure relating to exempt income under section 10 or section 11 or section 12. हाँ? मतलब let us say agricultural income. अभी agricultural income exempt है तो उसके रिलेटेड जो एक्सपेंस है उसका भी बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा. तो अगर मैंने वो एक्सपेंसेस को पीएनएल में डेबिट किया है तो उसको एड बैक करना पड़ेगा, एंड इनकम है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा. All right. Then amount of expenditure relating to income being share of the SSC in the income of association of persons, body of individuals on which no income tax is payable in accordance with the provisions of section 86. मतलब AOP BOI जो है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट तो एग्जम्प्ट है, तो उसके रिलेटेड एक्सपेंसेस रहेगा तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा एंड इनकम को लेस करना पड़ेगा. अभी आपको एक पॉइंट समझ में आता रहेगा, दीस पॉइंट्स वुड रिपीट इन सब्ट्रैक्शंस. जैसे ये एक्सपेंसेस ऐड हो गया, नीचे एक्सपेंसेस इनकम लेस होगा, या फिर जैसे ये एक्सपेंसेस इधर ऐड होगा तो शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एओपी एलएलपी फर्म वो लेस हो जाएगा. देन इन amount or amounts of expenditure relating to income accruing or arising to an assessee being a foreign company from capital gain on transaction in securities, interest, royalty fees for technical services charged to special rate under chapter 12. If the income tax payable thereon is accordance with the provisions of the act other than provisions of this chapter, it is rate less than the rate specified in subsection 1. मतलब हम लोग नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन में प्रोविजन देखेंगे जहां पे नॉन रेसिडेंट्स के लिए स्पेशल रेट ऑफ टैक्स बिकम्स एप्लीकेबल, तो उनको कंसेशनल रेट से टैक्स भरना पड़ता है. अभी अगर उसको कंसेशनल रेट से टैक्स भरना है, वापस हम लोगों ने यहाँ पे एडिशन कर दिया, तो देन दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय द डिपार्टमेंट, राइट. सो व्हाट डिपार्टमेंट सेज कि ऑलरेडी आपको वहां पे हम लोग बेनिफिट दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग बेनिफिट आपका छीनना नहीं चाहते, तो यहाँ पे आपका बेनिफिट एडजस्ट नहीं होगा, तो ये एक्सपेंस एंड इनकम हम लोग दोनों कंसिडर नहीं करेंगे. तो जैसे हम लोग एक्सपेंसेस ऐड कर रहे हैं वैसे हम लोग इनकम भी क्या करेंगे, लेस कर देंगे. Okay, then FC. Now this point is a bit different, but again this will be there in both the cases. FC and K जो point है वो similar है. Amount representing notional loss on transfer of a capital asset being share or of a special purpose vehicle to a business trust in exchange of units allocated by trust referred to in clause 47 referred to in section 47 clause 17. अगर आपको याद आ रहा है ट्रांजैक्शंस नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर, उसमें एक ट्रांजैक्शन था विच इज 17th क्लॉज कि जहां पे स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है, एसपीवीज मतलब क्या, जैसे एसईजेड रहता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वैसे स्पेशल पर्पस व्हीकल्स आर फॉर्मुलेटेड इन ऑर्डर टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन और टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक एक्टिविटी. अभी ये जो एसपीवीज उन्होंने एस्टेब्लिश किया है उनका काम क्या रहेगा, दे ऑपरेट ऑन द बेसिस ऑफ बीओटी, built, operate and transfer. So they help the business to grow to a reasonable extent, and once that business is grown, subsequently what you do is you subsequently you consider that business to be in operation mode, and then ultimately you transfer that business to another entity, and after transferring the business to another entity you ensure that then you ensure that the business is being carried forward by the subsequent entity. तो यहाँ पे SPV का पर्पस टेम्पररी पीरियड के लिए रहेगा,
तो once the temporary period is over, then you will consider that business to have been transferred to another entity. तो यहाँ पे जब भी बिजनेस ट्रांसफर होगा तो उसके एसेट्स एंड लायबिलिटीज भी एक्सचेंज होंगे, दैट इज वन. तो ये जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं उसके अगेंस्ट जो आपको यूनिट्स मिल रहा है, तो वो यूनिट्स हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, दीज यूनिट्स विल बी कंसिडर्ड टू बी नॉट लायबल फॉर टैक्सेस. तो दोनों यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा. जो एसेट एक्सचेंज होगा दैट इज ऑल्सो अ ट्रांसफर. सेकेंडली जो एसपीवी की यूनिट होल्डर्स है उनको, मतलब जो शेयर होल्डर्स है या फिर जिन्होंने एसपीवी में इन्वेस्टमेंट किया है, तो उनको एसपीवी का यूनिट जाके उनको न्यू बिजनेस का यूनिट्स या शेयर्स मिल जाएगा. तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ शेयर्स हो रहा है. तो ये दोनों ट्रांजैक्शन को हम लोग टैक्सेबल कंसिडर नहीं करेंगे एज पर सेक्शन 47 क्लॉज 17. तो अगर ये इनकम टैक्सेबल नहीं है तो ऑब्वियसली इसके रिलेटेड जो बेनिफिट्स है वो भी आपको एडजस्ट करने को नहीं मिलेंगे. तो अकॉर्डिंगली हम लोग कंसिडर करेंगे कि सेक्शन 47 क्लॉज 17 अकॉर्डिंग टू विच when SPV is transferring the capital asset or SPV is transferring the units to another entity और यूनिट होल्डर्स के बीच में जो एसेट ट्रांसफर हो रहा है उसका इनकम भी एग्जम्प्ट होगा एंड उसके रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस रहेगा, तो वो भी हम लोग इग्नोर कर देंगे. मतलब एक्सपेंस एड बैक हो जाएगा एंड इनकम हम लोग लेस कर देंगे. क्वेश्चंस में जनरली ये बहुत ज्यादा एक्सटेंड तक नहीं आता, बट पॉइंट थोड़ा डिफरेंट है, इसके लिए आपको याद रखना है. ये सेम दो पॉइंट लेस में भी आएगा. अभी हम लोग एक्सपेंडिचर की बात कर रहे थे तो एक्सपेंडिचर ऐड होगा एंड उसके रिलेटेड जो इनकम है वो हम लोग बाद में क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे. ऑलराइट. देन द अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन हम लोग क्या करेंगे, एड बैक कर देंगे. देन अमाउंट ऑफ डेफर्ड टैक्स एंड प्रोविजंस देयरऑफ. ये एक याद रखना है, डेप्रीसिएशन ऐड भी करना है, लेस भी करना है. अभी आपको जनरली क्या लगता है, लाइक जनरली हमें लगेगा कि डेप्रीसिएशन ऐड बैक होगा एज पर बुक्स एंड लेस होगा एज पर इनकम टैक्स. वो इनकम टैक्स मतलब टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए दैट इज राइट, बट व्हेन यू आर कंसिडरिंग मैट प्रोविजंस, तो मैट प्रोविजंस कंसिडर करते वक्त वी आर नॉट सपोज्ड टू कंसिडर दिस. वी आर सपोज्ड टू कंसिडर we are supposed to consider depreciation as per books only. तो add and less दोनों हमें क्या करना है, add and less हमें दोनों क्या करना है, बुक्स का ही डेप्रीसिएशन एड एंड बुक्स का ही डेप्रीसिएशन लेस करना है. बट नाउ यू विल बी कंफ्यूज्ड कि अरे दोनों ही बुक्स का करना है तो एड एंड लेस का अमाउंट तो सेम रहेगा, करेक्ट. तो यहाँ पे याद रखो, एड बैक करते वक्त आपको टोटल डेप्रीसिएशन एड बैक करना है एंड लेस करते वक्त आपको लेस करना है डेप्रीसिएशन ऑन एसेट्स अदर देन रिवैल्यूएशन. तो रिवैल्यूएशन छोड़ के जो पार्ट, देखो, amount of depreciation debited to P&L excluding the depreciation on account of revaluation of the assets. तो assets के revaluation related aspect छोड़ के बाकी जो रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे. हाँ, मान लो कुछ भी रिवैल्यूएशन नहीं है तो एड एंड लेस का अमाउंट क्या रहेगा, सेम रहेगा. बट सपोज रिवैल्यूएशन रहेगा, हाँ, तो मान लो टोटल डेप्रीसिएशन 10 लाख का है, हाँ, उसमें से 3 लाख इज बिकॉज ऑफ रिवैल्यूएशन. मैंने एसेट को अपवर्ड वैल्यू कर दिया तो एसेट का वैल्यू बढ़ा दिया तो नेचुरली डेप्रीसिएशन बढ़ जाएगा. तो अननेसेसरी आई एम क्लेमिंग एक्स्ट्रा डेप्रीसिएशन. तो ये एक्स्ट्रा डेप्रीसिएशन क्या हो जाएगा, आपको लेस कर देना पड़ेगा. आर यू गेटिंग इट? तो ऐड होगा 10 एंड लेस होगा 7 एंड इसके रिलेटेड सम में इंफॉर्मेशन दिया रहेगा. तो यू नीड नॉट अज्यूम एनीथिंग कि एसेट का रिवैल्यूएशन हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो क्लियरली मेंशन किया रहेगा एंड उस हिसाब से आपको कंसिडर करना पड़ेगा कैलकुलेशन. ओके. देन डेफर्ड टैक्स प्रोविजंस, ऑब्वियसली इसको प्लस माइनस कर देंगे हम लोग.
डेफर्ड टैक्स अगर एसेट एंड लायबिलिटी है, हम लोग पीएनएल में डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं, तो पीएनएल डेबिट कर दिया तो उसको लेस एड बैक करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज नॉट सपोज टू बी कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंस। एंड पीएनएल के क्रेडिट में है सपोज, या पीएनएल के क्रेडिट में है सपोज, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, बाद में लेस कर देंगे। Then amount standing in revaluation, sorry, amount or amount set aside as provision for diminution in the value of the assets, that is provision for doubtful debts, provision for impairment of loss। अब ये genuine losses नहीं है, ये सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग लॉसेस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हमें कंसिडर करना पड़ेगा, या उसको हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि दिस इज नॉट एन एक्चुअल loss and therefore it is required to be added back। Then amount standing in revaluation reserve relating to revalued asset on retirement or disposal of the asset। मतलब asset disposal होने के बाद, मतलब asset अभी मतलब उसका यूजफुल लाइफ या यूसेज बंद हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको निकाल देंगे बुक्स ऑफ अकाउंट से। तो उस केस में हमें कंसिडर करना है अमाउंट स्टैंडिंग इन रिवैल्यूएशन रिजर्व रिलेटिंग टू रिवैल्यूड एसेट ऑन रिटायरमेंट और डिस्पोजल ऑफ द एसेट। Then amount of gain on transfer of units referred to in clause 17 of section 47 computed by taking into account the cost of shares exchanged with the units referred to in the said clause और कैरिंग अमाउंट ऑफ शेयर्स एट द टाइम ऑफ एक्सचेंज ऑफ द शेयर्स। ये जो ऊपर वाला पॉइंट है उसके रिलेटेड ही है एसपीवीज के केस में, जहां पे हम लोग एसेट्स ट्रांसफर कर रहे हैं, वैसे वहां पे हम लोग ओनरशिप भी ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब जो शेयर होल्डर्स है उनका भी एक्सचेंज हो जाएगा, तो वहां पे भी हमें सेम पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन लेना पड़ेगा। ओके तो ये सभी पॉइंट्स जो है, ये सभी पॉइंट्स हमें क्या करना है, ऐड बैक करना है। ऑलराइट, अभी इसमें से लेस क्या करना है, एक एक पॉइंट हम लोग फटाफट देखते हैं। अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रिजर्व, ये पॉइंट हमने ऊपर देखा था कि रिजर्व्स में ट्रांसफर किया तो रिजर्व्स में से विड्रॉ कर दिया तो वो लेस हो जाएगा। देन अमाउंट ऑफ इनकम विच इज एग्जाम्प्ट अंडर 10, 11, 12। अभी याद रखो 10, 11, 12 का मतलब 10A, 10B, 10AA वो सब नहीं। हाँ, सेक्शन सिर्फ 10 के सब क्लॉजेस, मतलब 10(1), 10(2), 10(3), 10(4) वो एग्जम्पशन में आएगा। लेकिन अगर 10AA का एग्जम्पशन है या 10B है या 10A है, वो हम लोग यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। All right. डेप्रीसिएशन, याद है हमने डेप्रीसिएशन का पॉइंट डिस्कस किया था, अदर देन रिवैल्यूएशन वो लेस करेंगे। अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट if it does not exceed the depreciation, yes. Then amount of income being share of the assessee in AOP BOI, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट तो वो एग्जम्पशन में जाएगा तो उसको हमें लेस करना पड़ेगा। Then amount of income accruing or arising to the assessee from foreign company, हाँ, ये हमने ऊपर देखा था, जो कैपिटल गेन्स है या इंटरेस्ट रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज है विच इज चार्ज टू टैक्स अंडर चैप्टर 12, वो स्पेशल रेट से अगर टैक्स हो रहा है तो हम लोग उसको मैट प्रोविजंस में हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, यहाँ से भी हम लोग उसको लेस कर देंगे। देन अमाउंट रिप्रेजेंटिंग नोशनल लॉस ऑन ट्रांसफर ऑफ एसपीवी, same points we have, same these 2 points we were considered in above। याद है एसपीवी के रिलेटेड ट्रांसफर ऑफ एसपीवी's assets and liabilities, that is one capital gain।
Secondly, transfer of units in SPV by one holder to another holder, both would be considered as exempted from tax liability. Now, this is important aspect. Amount of loss brought forward or unabsorbed depreciation, whichever is less. तो ये दोनों में जो लेस पॉइंट रहेगा उसको हमें क्या कंसिडर करना है, एडजस्टमेंट कंसिडर करना है. तो मान लो मेरा अनएब्सॉर्ब बिजनेस लॉस है. लेट अस टेक वन एग्जांपल सो यू विल अंडरस्टैंड. Financial year 1920 business losses $15 lakhs and unabsorbed depreciation is, let us say, 25 lakhs. तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, whichever is less. तो whichever is less क्या आएगा, 15 lakhs. Are you getting it? तो आपको दोनों फिगर दिया रहेगा, तो आपको उन दोनों में से जो भी कम रहेगा उसको कंसिडर करना. Are you understanding? Yes, sir. अभी इसमें बताओ क्या होगा. There is no business loss, but there is unabsorbed depreciation. तो 25 lakhs आएगा ना सर? no, unfortunately no, because whichever is less है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा. तो नेक्स्ट ईयर जब लॉस रहेगा तब ये FY नहीं, ये गया 2021 अच्छा गया. क्योंकि ये साल का सिचुएशन ऐसे ही रहेगा ना, बिजनेस लॉस और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन. केस 1 एंड 2 को ऐड मत करो, दीज आर सेपरेट इंस्टेंसेस. मतलब आई एम टेकिंग डिफरेंट केसेस. हाँ वो समझा सर. नेक्स्ट ईयर 21-22 में यही अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं क्या 25 lakhs का? नहीं, वापस बिजनेस लॉस जीरो ही आएगा. अच्छा ओके. हाँ, वो साल का 21-22 का जो स्पेसिफिक है दैट वी कैन कंसिडर. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके. हाँ, लेकिन ये जो है उसको हम लोग कंसिडर नहीं कर पाए, मतलब नहीं करेंगे. ओके. Got it? सर ये सिर्फ मैथ में ही ऐसा रूल है ना? मैट में यस, इनकम टैक्स में ऐसा नहीं करना. एंड वो भी ये कौन सा, ये जो फिगर्स है एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स था. मतलब हियर वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर द फिगर्स एज पर इनकम टैक्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ सर. इस केस में क्या होगा पता? कंपनी का प्रॉफिट है बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन 20 लाख.
क्या होगा बताओ, बिजनेस लॉस कितना होगा? यू गॉट माई क्वेश्चन? नहीं Yes, सर, sir. 6 देखो, lakhs होगा ना सर? प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस मतलब पीबीडीटी is 14 lakh and depreciation is 20 lakh. हाँ, तो यहाँ पे मैं बिजनेस लॉस बोल सकता हूँ क्या 6 लाख का? हाँ नहीं, हाँ नहीं, अकाउंट्स में यस बट टैक्स में नो. तो Is it, मतलब is it the loss of the company because of the business operations? No, operations से मुझे प्रॉफिट है ना, तो बिजनेस लॉस नील है. अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कितना, हमने ये बिजनेस में प्रोविजन देखा था, याद है? ओ यस 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 यस, एंड तभी मैंने आपको स्पेसिफिकली बोला था कि अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन शुड बी ट्रीटेड डिफरेंटली. And abhi, you know the reason, because unabsorbed depreciation gets adjusted against all heads except salary, not only in current year but also in subsequent years. तो यहाँ पे मुझे जो 6 लाख का लॉस हुआ, is it business loss or loss due to depreciation? लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन, Depreciation, and therefore it is treated as a unabsorbed depreciation, राइट, right? ओके, And मेरा business loss कितना होगा? नील होगा. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, whichever is less, तो कितना आएगा? नील, नील ही आएगा, करेक्ट. हाँ, तो ये पॉइंट याद रखो कि आपको प्रॉफिट है लेकिन डेप्रीसिएशन आपके प्रॉफिट से ज्यादा रहेगा, तो आप फिर भी कुछ भी अमाउंट एडजस्ट नहीं कर पाओगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस सर, गुड. ये नोट डाउन कर ले सर. ठीक है, दैट विल बी बेटर. नोट डाउन दिस पॉइंट्स. लेकिन ये सिर्फ मैथ में है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट कैरीड फॉरवर्ड, करंट ईयर का नहीं, कैरीड फॉरवर्ड. The amount of profit of SICK industrial company for the assessment year commencing on and from the assessment year relevant to previous year in which such industry becomes a SICK unit. That means जो देखो लॉसेस हम लोग सब्सिडरी का जैसे एड बैक कर रहे हैं, वैसे प्रॉफिट भी मेरे बुक्स में टैक्सेबल नहीं होगा, तो उसको लेस करना पड़ेगा.
then amount of deferred tax if such amount of tax is credited to profit and loss account, then वो हम लोग लेस करेंगे. एंड लास्टली रिमेंबर दिस इज अ सेपरेट पॉइंट, इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी अंडर सेक्शन 115 बीबीएफ. तो 115 बीबीएफ में जो रॉयल्टी इनकम है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, लेस कर देना पड़ेगा. करेक्ट. हाँ, अभी ये एड एंड लेस करके जो प्रॉफिट आएगा उसको हम लोग कंसिडर करेंगे बुक प्रॉफिट, एंड फिर उसके ऊपर हम लोग परसेंटेज अप्लाई करेंगे. अभी अर्लियर मैट रेट था 18.5%, मैट एंड एमटी दोनों सेम था. अभी उन्होंने एमटी का रेट 15% कर दिया है. तो हम लोग कंसिडर करेंगे 15% ऑफ बुक प्रॉफिट और टैक्स पेबल एज पर इनकम टैक्स, विच एवर इज हायर, उतना टैक्स आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा. आर यू गेटिंग इट? ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगा रहेगा आज, बट डू वन थिंग, आज पूरा पॉइंट्स एक बार एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के पॉइंट एक दो बार वापस आज पढ़ लो. फिर कल हम लोग बहुत सारे सम सॉल्व करेंगे, 5-6 सम्स करेंगे एटलीस्ट. सो आपको वो मतलब टोटल 30 के आसपास है, बट कल के लेक्चर में 5 to 6 सम्स वी कैन कंप्लीट. तो फिर आपको उसका ग्रिप आने लगेगा. एंड वंस यू आर क्लियर कि क्या ऐड करना है क्या लेस करना है, मोर और लेस पॉइंट सेम रहता है. तो यू नीड नॉट बाय हार्ट दिस लिस्ट, बट लॉजिकली यू कैन रिमेंबर दीज पॉइंट्स. ऑलराइट? Yes. Yes. So please revise these points, and then tomorrow we'll continue with practical questions. Okay, sir. All right. Chalo, have a great day. See you tomorrow morning, 7 o'clock. Bye, sir. Bye, sir. And hello, one second. हाँ. Law students